नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी रंगदल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। मंजुनाथ धर्मस्थल की ओर से बिदर के ब्रिम्स अस्पताल को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किए गए दान। मुंबई में कोरोना के मामले हुए कम, उद्धव सरकार से बॉलीवुड को अनलॉक करने की उठी मांग। वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए। अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कही ये बात। जम्मू के एक गांव में भीख मांगकर गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला के झोपड़े से मिले नोटों से भरे बक्से देखकर हैरान रह गए अधिकारी। अनुभवी राजनेता इसाक हर्जोग बने इजराइल के 11वें राष्ट्रपति। अब समाचार विस्तार से। बिदर के चौड़ी में विश्वकर्मा वर्धनी संघ का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिदर साउथ के विधायक बंडप्पा खाशमपुर मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में मंजुनाथ धर्मस्थल की ओर से विश्वकर्मा समुदाय भवन बनाने के लिए मंजूर किए गए 5 लाख रुपए की राशि विधायक बंडप्पा खाशमपुर के हाथों से दिए गए। इस अवसर पर विश्वकर्मा धर्मस्थल के अधिकारियों ने विश्वकर्मा समुदाय भवन और विश्वकर्मा हॉस्टल बनाने के संबंध में बताया। साथ ही मंजुनाथ धर्मस्थल के अधिकारियों ने कहा कि धर्मस्थल की ओर से समुदाय भवन के लिए जो राशि मंजूर की गई थी वो विधायक बंडप्पा खाशमपुर के हाथों से दी गई। इसी तरह धर्मस्थल की ओर से गरीब लोगों को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना बनाई गई है। इस अवसर पर केपी न्यूज से बात करते हुए इसका विवरण किया। तदनंतर ನಾವು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು। ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ 2.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ಸರ್। ಈ 2.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಛಲಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದ್ದಾರೆ। ತಾವು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MLA ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ 2.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಸ್ತೀವಿ। ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನಿ ಸಂಘದ ಈ 2.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ। ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಡ್ ಸೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಕುಟಮಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಕಳೆದ 2015ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 37,000 ಜನ ಪಾಲುದಾರ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 750ರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಮಾಸಾಸನ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ SSLC ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ। मंजुनाथ धर्मस्थल की ओर से बिदर के ब्रिम्स अस्पताल को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान किए गए। इस अवसर पर बिदर साउथ के विधायक बंडप्पा खाशमपुर के अलावा धर्मस्थल के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। मंजुनाथाय नमः। श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामाभिवृद्धि योजना से हमारा बिदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अब कल दिन से 5 टन ऑक्सीजन धर्मस्थल से भेजे हुए हैं। आज 5 कॉन्संट्रेटर ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर आज ब्रिम्स हॉस्पिटल को ಅಂದರೆ ಡೊನೇಟ್ उचित फ्री में डोनेट करे हैं। ये प्रोग्राम में आज MLA बंडप्पा सर और AC मैडम और ZP CEO मैडम
हमारा प्रादेशिक कचेरी का रीजनल डायरेक्टर शिवराय। मेरा नाम उमर अब्बा है। धर्मशाला ग्रामाभिवृद्धि योजना डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर है बीदर जिले का। हमारा गरीब लोग है ना वो उसमें कर्नाटक स्टेट का 10,500 आदमी है। 10,500 आदमी को एक महीने को हजार रुपए देता है। एक महीने को 1 करोड़ और एक 12 महीने को 12 करोड़ रुपए केवल महाशासन देता है निर्गतिक। आज ये श्री क्षेत्र धर्मस्थला के ओर से जो पीठाधिपति वीरेंद्र हेगड़े जी है उनके तरफ से अच्छा काम हो रहा है। पूरा कर्नाटक में जो है ना बहुत कुछ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, ऑक्सीजन और ये तालाब के मट्टी निकालने का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज जो है ना बीदर में भी बीदर हॉस्पिटल को 5 जो है ना ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर दिए। मैं सभी बीदर आवाम के तरफ से मैं वीरेंद्र हेगड़े जी को मैं धन्यवाद देता हूं और अच्छा काम कर रहे। आने वाले दिन भी जो है ना ऐसे ही सपोर्ट अपने बैकवर्ड एरिया को दिया बोल के मैं। गुलबर्गा में हजरत पीर जंजानी दरगाह के 702वें उर्स शरीफ को सीमित पैमाने पर मनाने की घोषणा की गई। कर्नाटक के गुलबर्गा में प्रसिद्ध दरगाह हजरत पीर जंजानी का 702वां उर्स सीमित रहेगा। दरगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद सदरुद्दीन जंजानी के सज्जदा नशीन की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हजरत सैयदना शेख साद मखदूम पीर जंजानी का 702वां उर्स शरीफ 3, 4 और 5 जून को होगा। देश भर में फैले कोरोना वायरस के एहतियाती उपायों और लॉकडाउन के तहत इस साल उर्स शरीफ साधारण और सीमित पैमाने पर मनाया जाएगा। संदल का जुलूस नहीं निकलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संदल मालिश अदा की जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय और विदेशी आगंतुकों को उर्स शरीफ में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। उर्स शरीफ के मौके पर भक्तों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में फातिहा की व्यवस्था करें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में कोविड-19 टीका स्पुतनिक वी बनाने के लिए औषधि महानियंत्रक से परीक्षण लाइसेंस की अनुमति मांगते हुए आवेदन दिया है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुणे स्थित कंपनी ने विश्लेषण और जांच के लिए भी परीक्षण लाइसेंस की मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है। इस समय डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज भारत में रूस के स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन कर रही है। एक सूत्र ने बताया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत के औषधि महानियंत्रक को बुधवार को एक आवेदन दिया है, जिसमें कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी के भारत में निर्माण के लिए परीक्षण लाइसेंस दिए जाने की अनुमति मांगी गई है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में किस कदर अफवाह फैली है, इसका जीता जाता उदाहरण आज उत्तर प्रदेश के इटावा में देखने को मिला। इटावा के इकडील इलाके में एक बुजुर्ग महिला वैक्सीन लगवाने के डर से घर में रखी पानी की टंकी के पीछे जा छिपी। इकडील इलाके में कोरोना का टीका लगवाने से डरे लोगों में टीके के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से मुहिम चल रही है। जिला प्रशासन की टीम हेल्थ वर्कर्स के साथ गाँव-गाँव घूमकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। जब जिला प्रशासन की टीम बुजुर्ग महिला के घर के पास पहुंची तो वहां भागकर घर में चली गई। तब तक उन्हें भीड़ में से किसी शख्स की आवाज सुनाई दी कि अम्मा वैक्सीनेशन करने वाले आए हैं, बाहर आओ। यह सुनते ही महिला को लगा कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। टीका लगाने वाले उसे पकड़ ले जाएंगे। ऐसे में उसे घर में रखी टंकी नजर आई। वो टंकी के पीछे छिप गई। हेल्थ वर्कर्स बुजुर्ग महिला के पास गए, उसे बाहर लेकर आए और काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। हेल्थ वर्कर्स को उम्मीद है कि जब वो दोबारा अम्मा को समझाने जाएंगे तो वो जरूर मान जाएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब हालात सुधरने लगे हैं। महानगर मुंबई में भी रोजाना कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। कोरोना के आंकड़ों में गिरावट के साथ ही राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों में कोरोना से संबंधित पाबंदियां कम की है। इस बीच मुंबई में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब बॉलीवुड को भी अनलॉक करने की मांग उठ रही है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शूटिंग शुरू करने की इजाजत देने की मांग की है। फेडरेशन का दावा है कि फिल्म, टेलीविजन और वेब सीरीज से जुड़े लाखों लोगों की आय पर चोट लगी है। कोरोना की दूसरी लहर में लोग लॉकडाउन के चलते कलाकार, डायरेक्टर, टेक्नीशियन सभी प्रभावित हुए हैं। शूटिंग बंद होने से कई सिनेमा जगत से जुड़े कई कर्मियों पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। मजबूरन कई प्रोड्यूसर्स अन्य राज्यों में जाकर शूटिंग कर रहे हैं।
जम्मू के राजौरी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। राजौरी के नौशेरा में भीख मांगकर गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला की झोपड़ी से करीब 2,60,000 रुपए मिले हैं। सड़क किनारे फटे कटे तिरपाल और टूटी फूटी लकड़ियों से बनी झोपड़ी में करीब 30 साल से रह रही और भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को प्रशासन ने जब वहां से हटाकर वृद्ध आश्रम पहुंचाकर झोपड़ी को हटाया तो अंदर नोटों की गड्डियां देखकर सभी हैरान रह गए। दरअसल राजौरी के उप जिला नौशेरा के वार्ड नंबर 9 में घूम घूम कर भीख मांगकर गुजारा करने वाली इस बुजुर्ग महिला की स्थानीय लोग मदद किया करते थे। कोई इसे पैसे देता तो कोई खाना और कपड़े, इस तरह इसका गुजारा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1962 का आदेश हर जर्नलिस्ट को ऐसे आरोप से संरक्षण प्रदान करता है। गौरतलब है कि एक बीजेपी नेता की शिकायत के आधार पर विनोद दुआ पर दिल्ली दंगों पर केंद्रित उनके एक शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। एक एफआईआर में उन पर फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने जैसे आरोप लगाए गए थे। देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर और पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा जैसे मुद्दों पर मंथन करने के लिए आरएसएस के शीर्ष नेता 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। संघ सूत्रों के मुताबिक संघ की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन 3 से 5 जून तक होगा। इस बैठक में शीर्ष के 10 नेता मौजूद होंगे। सरसंचालक मोहन भागवत, सर्स कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले, पांचों सह सरकार वाहक कृष्ण गोपाल, मनमोहन वैद, मुकुंद, अरुण कुमार और रामदत्त चक्रधर इस बैठक में शामिल होंगे। इनके अलावा सुरेश सोनी, भैयाजी जोशी और भाग्य भी बैठक में शिरकत करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने जून महीने में सरकार के 12 करोड़ वैक्सीन लगाने के दावे पर सवाल उठाए हैं। साथ ही वैक्सीन बजट को लेकर भी सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आंकड़ा पेश करते हुए ट्वीट किया है कि मई में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ थी। वैक्सीन का उत्पादन 7.94 करोड़ हुआ और 6.1 करोड़ वैक्सीन लगी। अब जून में सरकार का दावा है कि 12 करोड़ वैक्सीन आएगी। कहां से? क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया? वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए? अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान में बीकानेर बॉर्डर से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पाकिस्तानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 56.5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। यह मामला बीकानेर से लगे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकी बंडली के इलाके का है। 2 और 3 जून की दरमियानी रात को ड्यूटी पर तैनात जवानों को तारबंदी के पास हलचल दिखाई दी। जब बीएसएफ के जवानों ने ड्रग्स तस्करों को ललकारा और फायर किया तो रात के अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाकर तस्कर वापस पाकिस्तान की ओर भाग निकले।
अमेरिका ने बुधवार को भारत समेत उन 5 देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमेरिका ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके फौरन बाद इस कर को 6 माह के लिए निलंबित करने की घोषणा भी कर दी गई। अमेरिका ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आईसीडी और G20 में अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर चल रही बहुपक्षीय वार्ता के पूरा होने के लिए समय देते हुए 6 महीने के लिए इस अतिरिक्त शुल्क को लगाने के साथ ही निलंबित कर दिया। अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि USTR कैथरीन टाई ने एक बयान जारी कर ऑस्ट्रिया, भारत, इटली, स्पेन, टर्की और ब्रिटेन द्वारा अपनाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स DST पर 1 साल की जांच के समापन की घोषणा की। इजराइल संसद नेसेट में हुए गुप्त मतदान में अनुभवी नेता इसहाक हर्जोग को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। लेबर पार्टी के पूर्व नेता 60 वर्षीय हर्जोग देश के पहले राष्ट्रपति होंगे जो पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं। उनके पिता सियाम हर्जोग वर्ष 1983 से 1993 तक इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हिजार्क को 120 सदस्यीय संसद में 87 मत मिले और उन्होंने आसानी से अपनी प्रतिनिधित्व मिरियम परेतेज को हरा दिया। वह आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति रियूवन रिवलिन के स्थान लेंगे जो 7 साल के कार्यकाल के बाद 9 जुलाई को कार्यभार छोड़ेंगे। हर्जोग ने उनका समर्थन करने वाले सांसदों को धन्यवाद किया और कहा कि इजराइल के सभी लोगों की सेवा करना सम्मान की बात है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। सूचना के अनुसार दोनों को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। मुंबई पुलिस अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी दोपहर 2 बजे के बाद बिना किसी कारण के घूम रहे थे। दोनों सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी वैध कारण के घूम कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के चलते इधर उधर घूमने पर पाबंदी होने के बावजूद दिशा और टाइगर दोनों मंगलवार की दोपहर बांद्रा बस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी ने उन्हें रोक लिया। दोनों ही घर से निकलने का वैध कारण नहीं बता सके, जिस वजह से पुलिस अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंजुनाथ धर्मस्थल की ओर से बिदर के ब्रिम्स अस्पताल को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किए गए दान। मुंबई में कोरोना के मामले हुए कम, उद्धव सरकार से बॉलीवुड को अनलॉक करने की उठी मांग। वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए। अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कही ये बात। जम्मू के एक गांव में भीख मांगकर गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला के झोपड़े से मिले नोटों से भरे बक्से, देखकर हैरान रह गए अधिकारी। अनुभवी राजनेता इसहाक हर्जोग बने इजराइल के 11वें राष्ट्रपति। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।